Hello students, today we are going to discuss chapter 2, accounts of not for profit concern. Students, we know that there are two type of organizations. Trading organization, it is also called as profit making organization, and non-trading organization, that is not for profit organization or not for profit concern. So here we are going to discuss about not-for-profit concern in this chapter. So we know that trading organization means that organization where the main object is to earn profit, and they are engaged in trading activities, that is buying and selling of goods and services. So organization like uh, sole trading, concern, partnership organization, public limited cooperative organizations, they are trading organization. Not for profit concern means, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है that we are discussing here in this video. So not for profit concern are those concern which are not started to earn profit but to give qualitative services to its members and society at the minimum charges. So, not for profit concern established to provide qualitative service to member and society and not to earn profit, but they are providing such services by charging some minimum charges because they also need money or income to run their activity. Then the second thing is they do not carry any trading activity or manufacturing activity. तो ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्यों की जाती है? टू अर्न प्रॉफिट. एंड हियर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट. तो इसके लिए दे डू नॉट कैरी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. The next, their main objective is to provide social service and to promote art, culture, sports, education, etc. So students, not for profit concern provide social service, and at the same time not for profit concern promote art, culture, sports, education. The nature of these concern are different from profit organization. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न नहीं है एंड अकाउंट्स भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अलग मेंटेन होते हैं. दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस just like profit organization. They are not preparing trial balance but they prepare receipt and payment account. पर वो क्या प्रिपेयर करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लाइक ट्रायल बैलेंस. तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्या होता है स्टूडेंट्स? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. देयर आर वेरियस examples of not for profit concern. So the first example of it, चेंबर ऑफ कॉमर्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एग्जाम्पल है. रिलीजियस कंसर्न ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के. चैरिटेबल हॉस्पिटल ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एग्जाम्पल है. देन स्कूल, देन स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट. देन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सो स्टूडेंट, सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है? फर्स्टली जो एंट्रेंस फी है जिसे हम एडमिशन फीस भी कहते हैं. अगर कोई पर्सन किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मेंबर बनना चाहता है तो
वो क्या देगा, एडमिशन फी देगा, मतलब कि एंट्रेंस फीस देगा। तो ये क्या हो गया, ये इनकम हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। देन फिर वो मंथली सब्सक्रिप्शन देगा, मंथली फी, मंथली चार्जेस। तो ये मंथली चार्जेस मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन है, तो ये भी इनकम हो गया। सम टाइम डोनेशंस जो है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को मिलते हैं, तो डोनेशन भी क्या हो गए, इनकम हो गए। गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को ग्रांट देता है। गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को सब्सिडीज देते हैं, समटाइम गवर्नमेंट गिव्स देम कंसेशन। तो इस तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्या होता है, इनकम होता है। सम आर देयर हु गिव्स डोनेशन, लेगसीज, तो ये भी इनकम सोर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। Now, features of not-for-profit concern. So, student, first feature of not-for-profit concern. The primary objective of such concern is to provide services to its members and not to earn profit. That I already told you that not-for-profit concern are established to provide services only and not to earn profit. Secondly, these concerns are formed for promotion of art, culture, education, sports, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के एग्जांपल्स कौन से हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है वो किसके लिए काम करता है, टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। The member of this concern cannot got the dividend. It is prohibited because not-for-profit concern are not trading organization. They are not profit-making organization. So उनके जो members है उनको डिविडेंड नहीं मिलता, तो वहाँ पे डिविडेंड क्या है, प्रोहिबिटेड है। The management of such concern is done by elected representative of member. इनका मैनेजमेंट कैसे तय होता है, by the elected representative of member. Means here you get an idea that जो members होते हैं वो भी मैनेजमेंट में शामिल हो सकते हैं। These concerns prepare receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. तो मैंने अभी आपको बोला कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, हियर दे प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, हियर दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट उनकी प्रिपेयर होती है, इट इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Capital fund is created by such concern. It is made up of entrance fees, surplus, legacies, and donation specially received for capital fund. So capital fund means ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कैपिटल होता है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल फंड है। और कैपिटल फंड क्रिएट कैसे होता है, बाय एंट्रेंस फीस, बाय सरप्लस, बाय लेगसीज, बाय डोनेशंस। इस तरीके से एंट्रेंस फीस मीन्स एडमिशन फीस, surplus means whatever money remain from their income, that is called as surplus. And legacies मतलब अगर कोई not means gift received under the will on the death of a donor. So the gift may be for general purpose or special purpose. If the gift is for general purpose, then it is treated as a revenue income. And if the gift is for special purpose, then it is a capital receipt. So it should be shown on the liability side of a balance sheet. And if it is a general gift, then it should be shown to the income side of income and expenditure account. Now here receipt and payment account. तो जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है।
सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से है? द डेबिट साइड ऑफ इट मीन्स रिसीट and credit side of it means payment. Now look at here features of receipt and payment account. So firstly it is a real account. Receipt and payment account is similar to cash book. Receipt and payment it is just like a cash book. Then third, it includes all types of receipt and payment. Means whether they are revenue income, whether they are capital income, or whether they are revenue expenditure, or whether they are capital expenditure. All are included in receipt and payment. Fourth, it record all receipt and payment made during a particular period, that is current year, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर। मतलब कि यहाँ पे रेसिडेंट पेमेंट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सबका इंफॉर्मेशन, सबका रिकॉर्ड इसमें होगा। देन फिफ्थ, इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मीन्स अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है या फिर आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट है तो वो जो है वो रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्डेड नहीं होगा। This account is a base to prepare final account of not for profit concern. So not for profit concern का final account हमें किस बेस पे प्रिपेयर करना है? ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, सिमिलरली हियर we have to prepare final account of not for profit concern on the basis of receipt and payment. Seventh, this account shows opening and closing balances of cash and bank or bank overdraft. If bank overdraft is, then bank overdraft. So receipt and payment में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का और बैंक का। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसका। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ रिसिट, कैपिटल रिसिट एंड रिवेन्यू रिसिट। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसिट? अभी मैंने यहाँ पे बोला इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिसिट एंड पेमेंट, तो मैंने बोला रिवेन्यू और कैपिटल दोनों। तो व्हाट इज कैपिटल रिसिट? So what is capital receipt? All such receipts are non-recurring in nature and not forming a part of regular flow of income of a concern are known as capital receipt. Example, specific donation for building sports tournament, library, life membership fees, etc. मीन्स जो आपका रेगुलर फ्लो नहीं है इनकम का। सपोज कि डोनेशन जो है, डोनेशन रेगुलर फ्लो नहीं है इनकम का। आपको डोनेशन कभी अगर कोई देता है तो मिलेगा। सपोज लाइफ मेंबरशिप फीस मीन्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सम मेंबर्स पे लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हर एक मेंबर नहीं पे करेगा, कोई मेंबर जो है वो पे करता है, तो ये रेगुलर इनकम नहीं है। तो जो आपका रेगुलर इनकम नहीं है वो कैपिटल इनकम है। मीन्स जो नॉन रिकरिंग है, जो रिकरिंग नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, वो क्या है? कैपिटल रिसिट है। Second, revenue receipt. So revenue receipt means what? All such receipt which are recurring in nature and represent regular flow of income of a concern are known as revenue receipt. So students अभी तक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि revenue receipt means recurring in nature, means regular income। जो आपका रेगुलर इनकम है वो रिवेन्यू रिसिट में आता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन रेंट, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आपको मंथली मिलता है वो किस में आता है? रिवेन्यू में आता है। तो रिसिट में भी देखो जो रिवेन्यू है उनकी एंट्री कहाँ पे होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो रिसिट कैपिटल है उनकी एंट्री कहाँ दिखानी है? बैलेंस शीट में। सो दोज which are revenue receipt we have to show it to the income and expenditure account. Those which are capital receipt we have to show it to the balance sheet. Types of payment. So payment के भी two types है, just like receipt, receipt के जैसे revenue और capital है, same like payment के भी capital expenditure and
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड रिवेन्यू मीन्स रिकरिंग इन नेचर। तो जो रेगुलर नहीं है वो कैपिटल है और जो रेगुलर है वो रिवेन्यू है। नाउ लुक एट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। These expenditure are non-recurring expenditure in nature. The benefit of such expenditure are likely to be received for a long period. These expenses are shown on the asset side, the balance sheet, and the balances are carried forward to the next accounting period. मतलब कि ये जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर वेयर यू गेट बेनिफिट, वेयर यू रिसीव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि असेट है, अगर आप परचेस करते हो असेट, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, इफ यू परचेस असेट, तो ये जो असेट जो है वो आपको लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट देता है। देन तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, these expenses are recurring in nature. So जो recurring है, the benefit of these expenses are enjoyed immediately, that is in current year. जो revenue expenditure का benefit है वो short period का है, मतलब कि आपको वो current year में ही उसका benefit मिलेगा। So revenue expenditure means recurring in nature, like salaries, taxes, insurance, premium, etc. Then deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is actually a revenue expenditure. Such expenditure is incurred for receiving benefits for more than a year. तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, पर उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिल सकता है। तो सच एक्सपेंडिचर गिव्स यू बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे देखो ये प्रोफार्मा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। ये जो डेबिट साइड है ये एक्सपेंडिचर की है, क्रेडिट साइड जो है वो इनकम की है। सो रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर से हमें नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर मीन्स सैलरी, देखो यहाँ पे सैलरी पेड, पेड फॉर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। नाउ यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सारे इनकम आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट, एंट्रेंस रिसीट, एंट्रेंस फी जो कि रिवेन्यू है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में सारे रिवेन्यू इनकम आते हैं एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस ही एंटर होते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ सिमिलर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्टली इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलता है। तो रूल क्या है स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो इस रूल से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रन होता है। इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू इनकम की ही एंट्री होती है, और वो भी करंट ईयर की। मीन्स प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? करंट ईयर revenue expenses and revenue income. Then third, it is similar to profit and loss account. तो स्टूडेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही है। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। तो इसमें नॉट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट इस तरीके से डिफरेंस मिलता है। इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो सरप्लस और डेफिसिट ये ट्रांसफर कहाँ पे होता है? कैपिटल फंड में। तो वॉट एवर डिफरेंस अराइजेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कॉल्ड एज सरप्लस और डेफिसिट एंड दैट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल फंड में।
नाउ दिस इज़ द बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट इस तरीके से होती है। तो हमें रिसीट एंड पेमेंट से क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे कैपिटल फंड है। कैपिटल अकाउंट नहीं, दिस इज़ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस होता है ऐड डोनेशन, कैपिटल डोनेशन, कैपिटल एंट्रेंस फीस इसमें ऐड होती है। सरप्लस होगा तो ऐड होगा, डेफिसिट लेस होता है। नाउ यहाँ पे देखो लायबिलिटी किस तरीके से है। बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, ये लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, सन्ड्री क्रेडिटर दैट यू नो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यू नो, प्री रिसीव्ड इनकम मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी में होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस भी लायबिलिटी में होता है। देन सी द असेट साइड ऑफ इट, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, फिक्स डिपॉजिट असेट में आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड भी असेट है स्टूडेंट यहाँ पे। मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी बुक्स असेट है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, लोन एंड एडवांसेस गिवन। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, लोन एंड एडवांसेस गिवन असेट है। एक्रू इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये असेट साइड है इसकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्लियर हुआ होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा ये। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। तो आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की थ्योरी जो है वो होप सो कि समझ में आई होगी।